Dear students, good morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from KV CRPF Mokamaghat. Today in this EVS class, I will discuss. Here you can see the discuss portion, and here you can see the bill that is regarding water supply. And last class, I very nicely explained all these pictures. Here you can see how the tank supply water, drinking water to the municipality or corporation area, how the village people, how the rural areas people collect water from well, and when the well dried up, they go to collect water far away. And in rural area also, one thing that is the fact, that is the caste discrimination. And about that we already discussed that some people belongs to upper caste or some people belongs to lower caste. They differentiate their caste, and casteism differentiate the people to collect water from well or tube also. So such things you can see in rural areas, especially where the education, where the modern education and modern thinking not developed. There are prejudice, orthodox, बहुत तरह का कुसंस्कार वहाँ आज भी पनप रहा है. तो इस तरह की जगह की ये चीज़ भी हम देखे थे. कैसे टैंक में सप्लाइड पानी को इकट्ठा करके सारा दिन भर के लिए यूज़ किया जाता है. कैसे ग्राउंड वाटर को सीधा हैंड पंप के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं. कुछ लोग कैनल से, फिर नदी से सीधे पानी ले आते हैं. कुछ लोग पंप लगा करके ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं. किसी का पानी सप्लाई होता है कॉलोनी में, बड़ा टंकी बनाया जाता है, टैंक बनाया जाता है. तो ये सारी चीज़, all these things here you can see we already discussed. Today in this class we will discuss here the discuss portion, and here you can see a bill, and this portion here you can see everyone has the right to live. This line is very important. We have to know this one, that everyone in this earth has the right to live. जीने का अधिकार सबका है. एक लाइन हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं. दिस इज़ वेरी फेमस एंड दिस इज़ वेरी फेमिलियर टू अस, दैट जियो और जीने दो. इट इज़ everybody getting enough water to live or even water to drink. In our day-to-day life, we already discussed about the importance of water in all the work in our day-to-day life, such as washing, bathing, all these things. You can see water is very essential, and that is not essential for only you, not only for you. Water is essential for all people. So you have to think about it, that all the people have a right to get water from nature. And water is no one can make water. Water is very important resource, very essential or very useful resource, that is that can be get from nature. So nature is not belongs to anyone, any person. So nature is belongs to nature, and we are the part of nature also. So nature के पार्ट होने के नाते ये एवरी पर्सन, हर एक आदमी को, हर एक जानवर को पानी का अधिकार है. तो इससे हम किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. तो फिर भी क्या होता है, कुछ लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है. आज जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर? शुड इट बी लाइक दिस? वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल. ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यहाँ आप देख सकते हैं, ये लाइन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ. इस लाइन को आप देख सकते हैं कि वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल. दैट मीन्स ये दुनिया में, अर्थ में, ये जो नेचर में हमारा वाटर उपलब्ध है, ये
सिर्फ और सिर्फ किसी एक के लिए, किसी कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। सम पीपल ड्रॉ आउट, इस लाइन को मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोर वेल्स। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो क्या करते हैं, वो डीप वेल से जो बहुत ही ज़्यादा डीप करके ग्राउंड वाटर को ले लेते हैं। लेकिन जिनके पास वो सिस्टम बनाने का नहीं है, वो क्या करते हैं, उनको 25 फुट 30 फुट में पानी नहीं मिल पाता है। जैसे हम यहाँ डिस्कस किए थे कि ये कुआं है और ये ट्यूबवेल है। यहाँ से आम पब्लिक, आम जनता जिनके पास अपना प्राइवेट पानी का सोर्स उपलब्ध नहीं है, उनको यहाँ से पानी लेना पड़ता है। और इसी कुआं के बगल में किसी बड़े आदमी का बहुत बड़ा ऑफिस हो या फिर बहुत बड़ा कंपार्टमेंट हो, उन्होंने डीप बोरिंग करके, और या फिर सिनेमा हॉल हो या फिर कुछ भी हो, ऐसा बड़ा कुछ प्रोजेक्ट हो जो डीप बोरिंग करके पानी को ले लेता है। तो इस कुएं वालों को क्या होगा, इस कुआं में फिर पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल फिर नीचे चला जाएगा। तो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ये सबका राइट है, सबका अधिकार है, इससे आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। आपको दूसरे का भी सोचना है कि उनको पानी मिल रहा है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बोर हैंडपम्प है। हैंडपम्प 25 30 40 फीट तक होता है, 50 फीट तक होता है। लेकिन किसी ने इसी के बगल में अगर बड़ा डीप बोर वेल लगा दिए तो इस हैंडपम्प को पानी नहीं मिल पाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसी चीज़ पर हाईलाइट कर रहा था कि सम पीपल क्या करते हैं, सम पीपल, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं लिखने के लिए कर रहा था, सम पीपल, some people draw out water from the ground by deep borewell। तो इससे क्या होता है, कुछ लोगों को तो पानी मिल जाता है। यहाँ आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ फार इज़ इट करेक्ट, ये कितने हद तक सही है। तो आप इसको बताइएगा। हम क्लास में रहते हैं, तो हम अपकमिंग क्लासेस में कल जो है लाइव क्लास लेंगे, उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और आपका राय भी मांगेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आज तो सिर्फ हर टॉपिक को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आगे कल हमारा इंटरेक्शन होगा सीधे लाइव, तो जूम क्लास में हम इसके बारे में लाइव डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर सीन दिस, आप इस तरह का सीन कभी देखे हो। वाई डू सम पीपल पुट ए पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड, कुछ लोग डायरेक्टली पाइप लाइन के साथ जोड़ देते हैं जल बोर्ड के साथ, जिनको पानी मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं जोड़ पाते हैं। तो इस तरह का ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंशिएट है, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है, ये बहुत ही हमारे लिए ख़राब चीज़ है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपकी किताब में भी आप अच्छा से देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही क्लियर व्यू नहीं आएगा, तो आप अपना किताब में देख लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है और कैसे इस तरह का दिल्ली जल बोर्ड का पानी का बिल आता है। ठीक है, ये 11/7/2007 की डेट की है, और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ दिल्ली जल बोर्ड पानी, और एक एक बूंद का जो इम्पोर्टेंस है उसको दर्शाने के लिए यहाँ कुछ एक लोगो और सिंबल लगाया गया है, और ये दिल्ली जल बोर्ड का लोगो है। तो ये सारा चीज़ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि दिल्ली जैसे बड़ा शहर में कैसे लोगों को पानी के लिए भी इस तरह का बिल चुकाना पड़ता है, और किस तरह से पानी के लिए हर समय सोचना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल जैसे यहाँ बिल है, ये 5/9/2007। इस बिल को आप अच्छा से गो थ्रू करोगे और इस बिल को समझोगे, कितना बिल आया है इनका, कितने महीना के लिए आया है ना, कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ जो है आपको इस बिल से मिलेगा। और इस बिल से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस यहाँ हैं, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। बिल में कहीं भी कुछ परेशानी हो समझने के लिए, तब ग्रुप में लिख सकते हैं कि बिल में इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सारा चीज़ जो है क्लियर लिखा हुआ है, आप यहाँ स्क्रीन पे बहुत अच्छा से नहीं देख सकते हैं, आपकी किताब में बहुत अच्छा से होगा, आप उससे
डाटा कलेक्ट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आगे कल हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज क्या करना है, इस तरह का एक बिल बनाना है। आज आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, आपको इस तरह का एक बिल बनाना है जो कि वाटर पानी के लिए होगा। आप इलेक्ट्रिक बिल को देख सकते हैं, उस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर इस बिल का देख करके आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से पानी के लिए जो वाटर बिल होता है जल बोर्ड का वो कैसे होता है। इसको आप बना सकते हैं अपना कॉपी पर और कलर करके इसका डिजाइन कर सकते हैं। जैसे बिल होता है इस तरह से आप बना सकते हैं। आई विल चेक योर वर्क एंड आई होप you will do it very soon, and in upcoming classes we will discuss the regarding questions here, and here in the passage you can see some questions, and I already said about it that I will discuss the live in live classes, further classes. So for this day this is enough for you. In this day, for this class, you have to make a bill regarding water. So for this day I hope you will do it very soon and I will check it. So thank you for this day.